So, folks, I'm very happy to welcome Nikhil. When I met him, he had just graduated from IMK, right? Which year did you graduate, Nikhil? Yeah, I graduated in 2013. हाँ, तो 2013 में ही graduated, so fresh off campus, नौकरी लगी हुई थी. He was the most unhappy college fresh campus recruit that I had met. But anyway, let me get into the formal introduction. So he's a IIT IIM graduate. He went to IIT BHU for his engineering, and then IMK for his further studies. Banker turned author is undoubtedly the country's highest selling author of Hindi books today in terms of contemporary new authors. All four of his books broke records and claimed the top spot on the AC Nielsen bestseller. The names of the books is Namak Swadhanusar, the first one we were talking about. Then there was Zindagi Ice Ice Spice, Spice. UP 65, and then Papa Man. And Namak Swadhanusar, we already said, was Hindi Book of the Year by BBC. For UP 65, Nikhil was awarded Emerging Author of the Year by FICCI and highest selling Hindi book of 2017 by Amazon. Yeah, The film rights for UP 65 were later sold to Geo Studios, and the rights to his fourth book, Papa Man, was sold to Fresh Lime Films. So that's yeah. the formal intro. लेकिन अब हम बात करते हैं एक्चुअल रियलिटी की. ये तो पेपर ये लो रेज्यूमे वाला होता है. So we had met at IIM Udaipur, and I remember you were very frustrated with the status quo of this corporate job that you were. So tell us a little bit about that. Where were you? What was going on? Why were you that way that time? Because I remember one So when specific thing, sorry, which was कि हम लोग IIM उदयपुर में थे, right? So you were addressing a room yeah, full of prospective corporate types, जो कि उनका ड्रीम था कि हमको ऐसे बैंक में नौकरी मिल जाए, और आपने वहां पे uh-huh. जाके उस बैंक की मिट्टी पलीत कर दी थी. तो ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ. So tell us about that. Where was your mind at that point in time? हम जब मिले थे I think I was with IBM at that time. I was Okay. consultant with IBM. Okay. But then corporate life like went on for quite long. Um, I did quit my job finally, I think in 2021. So for good 10 years, I have been doing corporate, IBM, KPMG, and then a broking firm, Angel Broking, and then finally, when I was thinking to quit, I was vice president at Kotak. I used to head their marketing and acquisition. So बुक्स तो हो रही थी. When I was at Kotak, तब तक 4 किताबें आ चुकी थी. And when the film rights were sold for the third book and the fourth book, तो ये तो समझ आ गया था कि अभी इस पे फिल्म वगैरह बनने का काम शुरू होगा. बट बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत समय लग जाता है. यूपी 65 पे वेब सीरीज बनने का काम 2019 2018 2019 से चल ही रहा था. पापा मैन पे भी तब से चल ही रहा था, बट वो फिल्में आ नहीं रही थी. टाइम बहुत लग रहा था. मैं बहुत सिनिकल था इस इंडस्ट्री के लिए. तो मुझे ये तो क्लियर था जब तक शूट नहीं शुरू हो जाएगी तब तक तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा. तो 2020 में कोविड आ गया. 2020 we were supposed to shoot Papa Man with a very big star, and this was like 2 months before COVID. And since I'm not allowed to name him, but I can conveniently say he's the biggest star of Indian cinema. So it's a very easy guess. Very easy, yes. So it's a very easy guess. हाँ. So but कोविड आ गया. शूट शुरू होने से पहले फिल्म बंद हो गई. देन दैट डिडंट हैपन. तो 2020 2021 बड़ा अजीब सा साल जा रहा था. लग रहा था कि अभी इसका शूट शुरू हो जाएगा, अभी उसका शूट शुरू हो जाएगा, बट शुरू कुछ हो नहीं रहा था. सो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. और मुझे लगा इससे तो किताबें ही अच्छी हैं. कम से कम आप जो चीज़ लिखते हैं उसका आईपी आपके पास तो रहता है. आप कम से कम किताब पब्लिश तो कर पाते हो. फिल्म लिख रहे होते हो तो आपका आईपी भी नहीं बचता. आप उस कहानी को बाहर लाना चाहते हो, बाहर भी नहीं आ सकती क्योंकि वो किसी प्रोड्यूसर ने उसको खरीद लिया. तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था. बट 2022 वॉज अ ग्रेट ईयर. मेरे 5 शूट 2022 में हुए. यूपी 65 का शूट ख़त्म हो गया. सुमो दीदी का शूट ख़त्म हो गया. बजाओ एक वेब सीरीज़ है उसका शूट ख़त्म हो गया. सलाम नोनियापा एक फ़िल्म है उसका शूट ख़त्म हो गया. ये मेरी फैमिली का शूट शुरू हो गया था एंड ऑफ 2022. सो 2023
काफ़ी रिलीजेस का साल रहा। मतलब मुझे याद है कि मतलब 2023 की शुरुआत में तो हर महीने कोई ना कोई रिलीज आ ही रहा था। तो पहले ये मेरी फैमिली रिलीज हुई, उसके अगले महीने यूपी 65 रिलीज हुआ, फिर उसके अगले महीने बजाओ रिलीज हो गया, फिर अभी सुमो दीदी इज अबाउट टू रिलीज, सलाम नोनियापा इज अबाउट टू रिलीज। सो दैट वे 2023 एक बहुत ज़्यादा अच्छा साल गया। तो जब 2022 में शूट शुरू होने लगे, तब ये जो सिनेसिज्म था वो खत्म हुआ और फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी 2021 के एंड में, एक्चुअली जब शूट्स फ्लोर पे जाने लग गए थे। तो फाइनली मैंने जॉब कोटक की अपनी छोड़ दी थी, एंड सिंस देन आई हैव बीन राइटिंग फुल टाइम। तो वेब सीरीज हैं, फिल्म्स हैं, तो ये तो सिर्फ ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज हो गए हैं। आई फॉरगॉट टू मेंशन होम शांति, दैट इज ऑन हॉटस्टार, वो भी रिलीज हुआ। तो 5-6 रिलीजेस आ गए, अभी काफ़ी सारे रिलीजेस प्लान्ड हैं। तो इट वाज क्वाइट अ गुड ईयर बाय दैट। That's fabulous. That seems like a lot of stuff that was happening in that 1 year itself. Yeah. So you were writing all the time, but you were writing on the side. So that's something that a lot of people ask me, saying, should I quit my job and start writing? And I tell them, पैसे कहाँ से कमाओगे? Because किताबों में पैसे तो बनते नहीं हैं। तो आपने shows shoot होने पे अपना job छोड़ा है. So there is money to be made in screens and screenplay, but not money to be made in books. Would that be an accurate statement? हाँ, सो नहीं, मेरा उल्टा रहा है। मैंने कभी जब भी मुझसे कोई पूछता है कि छोड़ देते हैं क्या जॉब, तो मैं सबको डिस्करेज ही करता हूँ, यू शुड नेवर क्विट। लाइक इम्पल्सिवली कभी नहीं छोड़ देना चाहिए जब तक आपके फाइनेंसेस आपके सॉर्टेड नहीं है। जब तक आगे का प्लान सॉर्टेड नहीं है, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जब लगे कि आपने अच्छा खासा पैसा जोड़कर जमा करके रख लिया है और पूरा प्लान सॉर्टेड है, आपको आगे की दिख रहा है कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करेंगे, आपको तभी छोड़ना चाहिए। और आई थिंक वो इजीली मैनेजेबल है, बिकॉज मैंने जब बिकॉज जो जितने लोग भी बोलते हैं कि जॉब के साथ लिखा नहीं जा सकता, आई थिंक वो आलस है खाली। क्योंकि जब मैंने कोटक छोड़ी है, तब तक मैं कम से कम आई थिंक 7 के आसपास फिल्में और वेब सीरीज लिख के ख़त्म कर चुका था। और क्योंकि जब सबके शूट्स कॉन्करेंटली शुरू होते हैं ना, तो अब यू कैन इमेजिन वो आखिरी जो महीना रहा होगा जब मैंने छोड़ा होगा, और जब सबके शूट ड्राफ्ट्स भेजने होते हैं, तो कितना क्रेजी काम होगा। यूपी 65 के 26 एपिसोड भेजने थे, ओम शांति के 8 एपिसोड थे, बाकी फिल्में थी, तो मतलब कम से कम 1000 पेज का फाइनल ड्राफ्ट काम रहा होगा जो भेजा, और वो सारा मैंने जॉब के साथ ही किया। तो मुझे लगता है अगर आप रोज लिखते हैं ना, तो कुछ भी चल रहा हो, नौकरी वोकरी दुनियादारी, आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। राइटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है, ऐसा मुझे लगता है। आप रोज लिखेंगे तो आप किसी भी चीज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं। एंड आई मस्ट मेंशन 2020 वाज द टाइम जब माय डॉटर वाज आल्सो बोर्न, सो आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। उसको भी समय दे रहे थे, कोविड का भी साल था, नौकरी का भी साल था, तो यू कैन इमेजिन कितना केओटिक समय रहा होगा। तो टाइम मिल जाता है इफ यू राइट एवरी डे, इफ यू राइट ऑन ऑल वीकेंड्स, आपको डेफिनेटली समय मिल जाता है, आई वुड से। तो ऐसी नौकरी छोड़ के नहीं शुरू कर देना चाहिए, आप प्लान वे में करेंगे, यू कैन डू इट। तो जब आप कह रहे हैं कि you should write every day, so does that mean, so there has to be a trade off to be able to find the time to write? You have to cut back on something else. So what do you cut back on? Do you cut back on social life? Do you cut back on social media? Where is that compromise? या मोस्टली सोशल मीडिया, सोशल लाइफ, एवरीथिंग। मतलब जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Sure. So while we are waiting, एड ब्रेक कर लेते हैं। ये देखो भाई, हिमालयन राइटिंग रिट्रीट में बैठा हूँ मैं, देखो बहुत सुंदर जगह है, आप लोग को आना चाहिए। तो ये स्क्रीन, वो पीछे वाला बैकग्राउंड फेक स्क्रीन नहीं है, दिस इज द एक्चुअल प्लेस। हाँ, मैं सर पूछने ही वाला था कि वहीं हो क्या आप अभी, या कहीं हाँ बाहर हो? हाँ हाँ, मुझे याद आ गया एकदम। छोटा सा एड ब्रेक। अभी ब्रेक के बाद अभी निखिल सर वापस आएंगे। So the questions have already started pouring in. So you all know the drill, right? I'll ask a couple more questions and then we will open it up to Q&A with all of you. तो अगर आपके सवाल हैं आप डाल सकते हैं. You can even put the questions in right now.
as and when they are emanating. But it's fascinating to talk to this guy, right? Along with a job, not just writing 4 books, but writing so many screenplays. It's crazy. Sorry, हम आपकी बुराई कर रहे थे. बताइए आप क्या कह रहे या सॉरी, नहीं वो लोग आ जा रहे थे तो हैं. अच्छा, आप ऑफिस में हो? तो इसलिए आई टू आज तो संडे है. No, I'm not in the office. I had to take the call quietly, so I came down, in the common area. Okay, okay. नीचे there's a guest house. So No problem. हाँ जी. So we were talking about what all do you cut out? Social media, social सब commitments. कुछ सोशल मीडिया, सोशल लाइफ, सब कुछ बहुत कट ऑफ था। और एक्चुअली जब मैं कोटक में भी था तो अभी वो लोग शायद दोबारा सुनेंगे तो उन्हें काफी बुरा लगेगा बट मैं वहां पर दिन भर लिखता था, ऑफिस में भी लिखता रहता था। ब्राइटनेस लैपटॉप का 0 करके वाइट फॉन्ट में, जो एकदम मिनिमम फॉन्ट होता था, 8 या 6 होता है नोटपैड पे, वो मिनिमम फॉन्ट पे मैं लिखता रहता था। घर आके उस वाइट को ब्लैक करता था और फिर बाकी सारे करेक्शंस करता था, बिकॉज आई डिडंट वांट एवरीबडी टू सी कि ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, हमें से इतना पैसा दे रहे हैं और ये आके कुछ काम नहीं करता और ये सब कर रहा है तो मैंने वहां पर आखिर के 1-2 साल तो यही किया है। मतलब दिन भर व्हाइट फॉन्ट्स में लिखता रहता था, घर आके ब्लैक करके उसका करेक्शंस करता था, बिकॉज आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मुझे छोड़ना था बट फिल्में शुरू नहीं हो रही थी, शोज शुरू नहीं हो रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बड़ा सिनिसिज्म होता था कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी नौकरी भी चली जाए और मुझे याद है कोटक का ऑफिस बीकेसी में है और नेटफ्लिक्स का ऑफिस वही है, अमेजॉन प्राइम का ऑफिस वही है, जियो का ऑफिस वहीं पे है। एंड आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू मिस्टर उदय कोटक, सो यू कैन इमेजिन कि शाम में मेरी उनको प्रेजेंटेशन है, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन चल रही है, तो मैं बीच में भाग के नेटफ्लिक्स के ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जियो में कहानी सुना के आ रहा हूँ, हॉटस्टार जाके कहानी सुना के आ रहा हूँ, फिर यहाँ पर आ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था। बट मैंने एक नियम बना लिया था कि जब तक शूट नहीं शुरू होगा मैं नौकरी छोड़ूंगा नहीं, तो कुछ कुछ करके मैनेज हो रहा था, चल रहा था। लवली. तो आप अभी 3 जॉनर लिखते हो. आप शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हो, आप नॉवेल्स भी लिखते हो और आप स्क्रीन प्ले भी लिखते हो. तो व्हाट डू यू लाइक हाँ, राइटिंग? शॉर्ट स्टोरी तो हाँ अभी काफी समय से नहीं किया, अभी तो नॉवेल्स अच्छा, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट ही कर रहा हूँ, अच्छा. तो नॉवेल्स ही कर रहा हूँ और स्क्रीन प्लेज ही कर रहा हूँ। क्या ज़्यादा पसंद है? आई थिंक दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। मैं ये बोलूँगा, किताब के अकेले मालिक आप होते हैं, तो आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और आप खुद ही आपका पूरा डिसीजन है कि वो क्या किस तरीके से एडिट होनी है, क्या होना है, कब आनी है, कब जानी है, राइट। तो बट फिल्मों में और वेब सीरीज में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे लोगों का लेना देना है उससे और कहना है कि उसके बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन देता है। एक टाइम के बाद इतने ड्राफ्ट्स होते हैं, पापामैन के अभी तक 50 रीड्राफ्ट्स हो चुके हैं। रीड्राफ्ट से मेरा मतलब है कि एक मेजर रीड्राफ्ट, एक रीड्राफ्ट, मेजर रीड्राफ्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो मेल है, आप उसको फीमेल बना दें और फिर उसके बाद वापस से पूरी कहानी लिखें। तो 50 मेजर रीड्राफ्ट तो हो चुके हैं एंड इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो किताबें थोड़ा सुकून ज़्यादा देती हैं, बट सैडली किताब पढ़ने वाले कितने लोग हैं? आप किताब बेस्ट सेलर हो जाती है तो 5,000 10,000 लोग पढ़ लेते हैं, 50,000 लोग पढ़ लेते हैं और भी बहुत बड़ी बेस्ट सेलर हो गई। तो चलता रहता है, कभी कभी बहुत सुकून के लिए अपने लिए खाली कहानी करनी होती है तो मैं किताबें करने लगता हूँ, बट बिकॉज पैसा तो स्क्रीन प्ले में ही है और अच्छा खासा पैसा है। अगर आप स्टैब्लिश हो जाते हो तो आप जितना पैसा कॉर्पोरेट जॉब करके बना रहे हो आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, और स्टैब्लिश हो जाते हो तो उससे ज़्यादा बनाते ही हो। तो मैं मिक्स कर रहा हूँ। अभी मैंने किताब पापामैन के बाद से तो कोई नहीं की, हो गया उसको आए हुए 3-4 साल हो गया। तो अभी फिलहाल मैं स्क्रीन प्लेज ही कर रहा हूँ, बिकॉज अभी ओके, थोड़ा सा ओके. घर जमाने की कोशिश चल रही है, तो बट आई एम लाइकिंग राइटिंग स्क्रीन प्लेज। ओके, ग्रेट. तो एक चीज बताइए, दैट डू हिंदी राइटर्स हैव एन एडवांटेज व्हेन यू राइटिंग फॉर स्क्रीन? क्योंकि मैं देखता हूँ अभी आसपास जो भी ज्यादातर स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं, अनु सिंह चौधरी है या दिव्य प्रकाश दुबे डायलॉग लिख रहे हैं, लेकिन वो भी हैं, आप हैं. तो इज इट ट्रू दैट अ हिंदी राइटर हैज एन एज ओवर इन इंग्लिश राइटर? एज तो है, देखिए काफी ज्यादा एज है, बिकॉज यहाँ पे अधिकतर राइटर्स जो हिंदी बेल्ट से नहीं है, अधिकतर लोग इंग्लिश में ही स्क्रीन प्लेज लिखते हैं। द डायलॉग्स आर आल्सो रिटन इन इंग्लिश, अधिकतर लोग।
फिर उसके बाद या तो कोई और डायलॉग राइटर हायर किया जाएगा जो उन डायलॉग्स को अंग्रेजी से हिंदी में करेगा, या फिर वही लोग बाद में उसको हिंदी में उसके डायलॉग्स करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सहज इंग्लिश में ही है अधिकतर लोग। तो एज है आपको। और थोड़ा एक बाढ़ सी आती है, जैसे एक बधाइयो जैसी एक फिल्म हिट हो जाती है तो फिर उसके बाद उसी तरीके की फिल्मों का दौर चलने लगता है। अभी एक पठान या जवान हिट हो गई है तो उसी तरीके की फिल्मों का दौर चलने लगता है। पिछले 1-2 साल से तो वो हिंदी बेल्ट वाली फिल्में कम बनने लग गई हैं, हम्म। बट था ज़माना 3 साल, 2 से 3 साल पहले, जब एकदम बाढ़ आ गई थी, जब हर किसी को एक बधाई हो जैसी एक फिल्म चाहिए थी। तो एज राइट। रहा है, राइट। बिकॉज वी थिंक इन हिंदी। हम लिखना, मैंने तो अब जाके फाइनली स्क्रीन प्लेज अंग्रेजी में लिखना शुरू किया है। एक समय था जब मैं देवनागरी में ही लिख रहा था, स्क्रीन प्लेज भी वैसे ही कर रहा था। तो आपने अपने आप को स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाया कैसे? मतलब राइटिंग अ बुक, राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी तो आप दिल से कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग में बहुत स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्कुल पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसका एक हम्म बहुत स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग है। तो हाउ डिड यू लर्न दैट, हम्म और हाउ डिड यू टीच दैट टू योरसेल्फ, और डिड समवन टीच यू? ये किताबें पढ़ी नहीं, नोबडी टॉट मी। किताबें पढ़ी, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज किए। देन देयर आर पेड कोर्सेज आल्सो, आप मास्टर क्लास पे कोर्स कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि किताबें हैं, अच्छी खासी हैं, और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल्स मिल जाते हैं। जैसे मुझे सेव द कैट करके एक किताब है जो स्क्रीन राइटिंग पे, वो काफ़ी या पसंद है। सेव द कैट इज़ वेरी गुड। हाँ। फोर स्क्रीन प्लेज नाम से एक किताब है सिटफील्ड की, वो भी बहुत अच्छी है। राइट। फिर देन चैनल्स बहुत सारे हैं। एक टाइलर मॉवी का चैनल है जो मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा। बाकी स्टूडियो बाइंडर है, और भी काफ़ी सारे चैनल है जहाँ पे वो एनालाइज करते हैं बहुत सारे सक्सेसफुल शोज को। पायलट कैसे लिखना है, एक सीजन का आर्क कैसे बनाना है, फिल्म कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसा होता है फिल्म का। अगर एक ड्रामा जॉनर का वेब सीरीज है, उसका क्या हम्म। स्ट्रक्चर होता है, सिटकॉम का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत हम्म। साइंटिफिकली सिखाते हैं कि पहले 3 मिनट, अगर 22 मिनट का एपिसोड है तो पहले 3 मिनट में क्या होता है, ओपन कैसे करना है, अगले 5 मिनट में क्या होता है, अगले 5 में क्या होता है, कंक्लूड कैसे करना है। तो बहुत सारा सामान है। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी खासी जानकारी तो किताबों से और यूट्यूब से मिल जाएगी। बाकी फिर जब आप काम करने लगते हैं तो हर डायरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग और तरीका अलग अलग होता है। तो फिर जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो व्हेन दे रिएक्ट टू योर स्क्रिप्ट, तो धीरे धीरे आप उनके साथ काम करते करते सीख जाते हैं। कुछ डायरेक्टर्स स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो सबकी अपनी अलग स्टाइल है। सो व्हेन यू वर्क विद पीपल, वो यू नो धीरे-धीरे को शुड नॉट बॉदर कि मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग नहीं आती, मुझे स्ट्रक्चर नहीं आती, क्योंकि पहली चीज़, पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास एक अच्छी कहानी होना। बाकी तो आप सीख जाते हैं। सीन कैसे लगाना है, क्या करना है, वो तो उसके लिए डायरेक्टर है, और उसके लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा देंगे। पहली रिक्वायरमेंट है एक अच्छी कहानी, वो होता है, बाकी चीज़ें आप सीख जाते हैं। ग्रेट। तो मैंने ये भी सुना है दैट स्क्रीन प्ले राइटिंग इज अ वेरी टीम बेस्ड एक्टिविटी, लेकिन लगता है हुँ। आपकी बातों से कि आपने ज्यादातर जो राइटिंग करी है सोलो करी है। सो हाउ डज दैट वर्क आउट? नहीं, अगर आप सोलो भी करते हैं राइटिंग, तो भी बहुत टीम बेस्ड एक्टिविटी है, क्योंकि अगर मैं अकेला राइटर हूँ किसी प्रोजेक्ट पे, मैं कहानी लिखूँगा, उसके बाद मैं वो कहानी प्रोड्यूसर को सुनाऊँगा। जब प्रोड्यूसर कन्विंस्ड होगा, तभी वो उस पर पैसे लगाएगा। तो प्रोड्यूसर को कन्विंस्ड करने तक उसके बहुत सारे रीड्राफ्ट्स होते हैं, उसके बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। फिर उसके बाद वो एक डायरेक्टर को लेकर आता है, उसे एक डायरेक्टर को कन्विंस करना होता है। तो कई बार साल-साल तक तो फिर प्रोड्यूसर को कन्विंस करने के बाद डायरेक्टर के साथ काम करना होता है। वो उसमें चेंजेस कराते हैं। फिर उसके बाद लेट्स से इफ इट्स अ वेब सीरीज़, तो ओटीटी चैनल आएगा, वो नेटफ्लिक्स हो सकता है, हॉटस्टार हो सकता है, जियो हो सकता है। वहाँ पर कम से कम 4-5 लोगों की टीम होगी, उनके इनपुट्स होंगे। फिर उसके बाद फाइनली आप एक्टर्स को सुनाना शुरू करते हैं कास्टिंग करने के लिए, तो उसमें बहुत बदलाव होते हैं। तो आप अकेले लिखें या आपके राइटर्स रूम में 5 लोग हों, आपको कम से कम 10 लोगों को सुनाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, फीडबैक लेना होता है। तो मुझे लगता है टीम जॉब तो तब भी है ही, तो ये जो आपके राइटर्स राइटर्स रूम रूम में होता कोई है, हो या ना हो। तो ये जो राइटर्स रूम होता है, इज इट अ बंच ऑफ पीपल हु वर्क फॉर यू, इज इट अ बंच ऑफ पीपल हु वर्क विथ यू फ्रॉम वेरियस प्लेसेस? सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ राइटर्स रूम? नहीं, राइटर्स रूम में मोस्टली देयर हायर्ड एंड
as project basis by either the producer. Let's say आप head writer हैं, तो आपका काम ये है कि आप कई बार राइटर्स रूम में कोई एक राइटर होता है जो सिर्फ डायलॉग्स कर रहा है। कई बार लोग एपिसोड्स बांट लेते हैं कि 2 एपिसोड एक इंसान ने लिखे, 2 दूसरे ने लिखे, 2 तीसरे ने लिखे। कुछ राइटर्स रूम ऐसे होते हैं कि जो एक हेड राइटर होता है वो बोलता है कि नहीं, कहानी मैं ही कॉइन करूँगा, स्क्रीन प्ले मैं ही लॉक करूँगा, उसके बाद मेरी डायरेक्शंस के साथ आप लोग एपिसोड्स बांट के लिखते जाओ। तो ये स्ट्रक्चर अलग-अलग होते हैं। बट एज़ अ राइटर यू डोंट हैव टू hire people. It is the producer's job, to hire them and then, assign them. Okay, all right, cool. So there was this fascinating movie that you've written, which is Sumo Didi. तो मेरे को पता भी नहीं Yeah. था, लेकिन evidently there is this lady, actual biopic है आपकी, right? There is Yeah, this, yeah. हाँ. So tell us a little bit more about that. It's a very, very interesting story. So Sumo Didi is based on India's only female sumo wrestler's life. उनका नाम है हेतल दवे। बॉम्बे में रहती हैं। So वो जूडो खेलती हैं। And she was fat shamed all her life क्योंकि वजन ज़्यादा था और because she had PCOD तो वजन बढ़ भी रहा था। So she was worrying कि अभी एक दिन जूडो भी छूट जाएगा because जो वेट कैटेगरी भी मेंटेन करनी होती है, राइट? So यूजुअली जूडो अकेडमीज में एग्जीबिशन मैचेस के लिए सुमो रेसलर्स भी आते हैं क्योंकि वो अकेडमी कई बार कंबाइंड होती है। तो वन डे उनकी अकेडमी में एक सुमो रेसलर आया और सारे के सारे कैमरामैन फोटो खींच रहे हैं, मीडिया आई हुई है। तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि मेरा वजन मुश्किल कुछ 90-100 किलो के आसपास है और मुझे सारी ज़िंदगी इसके लिए बहुत दुख झेलना पड़ा है, बहुत ताने सुनने पड़े हैं और मेरे सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जो 250 किलो का है, 300 किलो का है और उसे एकदम एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला हुआ है। तो ये उनके लिए ना बड़ा यूरेका मोमेंट रहा था और उन्हें लगा यार, जो वज़न मेरी कमज़ोरी है मैं उसी को अपनी ताकत बना लूँगी और मैं सुमो खेलूँगी। तो सुनने Nice. में बड़ा हास्यास्पद लगता है, रिडिकुलस है, बट यही हुआ था। एंड देन शी डिसाइडेड टू प्ले सुमो एंड फिर उन्होंने ताइवान, एस्टोनिया, पोलैंड जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बट ये बहुत कॉस्टली स्पोर्ट है। खाना खाना डाइट मेंटेन करना, फिर जाना, पार्टिसिपेट करना और इंडिया में कोई फेडरेशन नहीं है सुमो की, सो नोबडी स्पॉन्सर्स यू। Yeah. तो एक पॉइंट के बाद उनके पास पैसा बचा नहीं था तो उन्होंने एक खेल छोड़ दिया और आई थिंक 2015-16 के बाद उन्होंने सुमो नहीं खेला है। तो दैट वाज हर लाइफ जिसको हमने अडेप्ट किया और थोड़ा फिक्शनलाइज करके वी मेड इट इनटू अ फिल्म। आई थिंक दैट शुड कम आउट सून। दैट इज द स्टोरी। It's a wonderful story. मतलब even just listening to it is like quite amazing. Okay, so this हाँ, is when जब मैंने ये कहानी बस पढ़ी भी थी तो मतलब मेरे दिमाग में था कि यू कैन थिंक ऑफ दम लगा के um, so, can you all hear him clearly, or is it just me? Oh. Sorry, Nikhil. I think I have an unstable connection. आपकी आवाज clearly आ रही थी. Could everybody else hear Nitin clearly? Was it just me? Hello? I'm going to go inside. Hold on. अब better है? Can you Yeah, hear me now now? it's better. Now I can see it. I think it was Yeah, it's something better. I can see you. to be outside. So we were talking about Sumo Didi, but I was saying that what we can do is now we can open it to questions from the various participants.
So we've got a few questions in the chat. So the first question is about Hmm. what is your favorite time to write? Early morning, night, or do you do it in small sittings? I don't have any favorite time because अभी इतनी deadlines और इतना सारा काम रहता है. I write every day from morning 10 to at least 5 in the evening. Sometimes even later. I write on Saturdays, I write on Sundays, I write on holidays. So no favorite time. Hmm. I don't have any luxury anymore to have a favorite time or have a favorite place or Okay. have a favorite scotch. I have to write every day. Okay, next question. How is your writing discipline? What is the one tip you would give us as writers? अ, ये बहुत बड़ी टिप है. हाँ, बहुत जादू वाली टिप है कि यू हैव टू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट. वो कितना भी गंदा हो, कितना भी वाहियात हो और आपको लगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट. ओके, जब वो हो जाता है उसके बाद देन यू हैव टू जस्ट एडिट इट एंड मेक इट स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस ड्राफ्ट. And in another sitting you have to make it just a little more better than the previous draft. And by your third fourth draft you have like a decent draft. उसके बाद आप लोगों को पढ़ाइए, फीडबैक लीजिए और वो अच्छा होता जाता है. तो ये आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट राइटिंग टिप दैट एनीबडी कैन गिव यू. बहुत सारे लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है. आप अगर पहला ड्राफ्ट नहीं लिखेंगे, आप किसी को मत पढ़ाइए, वो कितना भी ज़्यादा वाहियात तो आप खुद ही पढ़ेंगे ना. बट आपके पास जब एक पहला ड्राफ्ट हो सकता आता है देन यू हैव टू जस्ट एडिट इट. और वो जो एक मेंटल बैरियर होता है ना कि अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, वो चला जाता है. उसके बाद आपको खाली उसे बेहतर बनाना होता है. दैट इज द Hmm. बेस्ट राइटिंग टिप आई कैन गिव. Right. ये Next. कोई भी सवाल, चाहे सेल्फ डाउट से रिलेटेड सवाल है या जो भी है, आप लिखिए और आप मत पढ़ाइए किसी को. जब लगे आपको कि अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, देन यू कैन. Okay. How do you get the first break and whom did you approach? Next question is how did you get your first break and फर्स्ट whom ब्रेक did you एक्चुअली approach? हाँ. जब थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में तो अप्रोच तो उस समय किताब के लिए तो आई डायरेक्टली रोट टू अ पब्लिशर एंड ही लाइक द स्टोरीज ऑफ नमक स्वाद अनुसार. वो समय उस पब्लिशर के पास कोई किताब नहीं थी. कुछ भी नहीं था, तो उसमें ब्रेक जैसा कुछ था नहीं. पब्लिशर का नाम हिंद युग्म है और नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री. आज हिंद युग्म हिंदी का सबसे बड़ा पब्लिशर है कंट्री में. दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, नीरोत्पल मृणाल, मैं, हम सब लोग हिंद युग्म से तब जुड़े जब वो एक कमरे में उसका दफ्तर था और वो जी. कुछ भी नहीं था, मतलब हिंदियों में. और इस समय जितने भी बेस्ट सेलर्स, अगर 10 बेस्ट सेलर्स निकलते हैं तो 10 में से 8 हिंदियों के होते हैं. तो ब्रेक जैसा पाने की मेहनत तो कुछ करनी नहीं पड़ी थी क्योंकि उस समय वो कुछ था ही नहीं. पब्लिशर सिर्फ उनको कहानियां भेजी, उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने पब्लिश कर दी. फिल्मों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त शुरुआत में इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि मुझे खुद फिल्म राइट्स के लिए कॉल आए. तो जब फिल्म राइट्स के लिए कॉल आए तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि UP65 वेब सीरीज तभी बनेगी जब आप लिखेंगे इसे. सेम वॉज विद पापा मैन कि ये तभी बनाएंगे हम जब आप इसे लिखेंगे. बिकॉज दे वांटेड दैट लहजा, दैट ऑथेंटिसिटी दैट वाज देयर इन द बुक. Okay. तो वो लिखते लिखते जब मैं वो सुनाने जाता था चैनल्स को या और डायरेक्टर्स को, तो वो थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी फैलने लगा कि अच्छा लिखता है. तो इस वजह से मुझे और काम के लिए डायरेक्टली फ़ोन आने लगे और वो हो गया. बट आई डोंट थिंक वन शुड वरी अबाउट द ब्रेक एंड ऑल. आपके पास अ, आपकी बाउंडेड स्क्रिप्ट जब हो जाती है ना तो वो आपकी करेंसी है. मतलब मेरा ख्याल है आपके पास 2-3 आपकी बाउंडेड स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो कि कंप्लीट फ़िल्म्स हैं. एक बार जब आप क्योंकि वो तो लोग मिलते रहते हैं ना. अभी जैसे आपने मुझे सुना, आपने मुझे भेज दी स्क्रिप्ट या किसी और को भेजा, अगर किसी को कहानी अच्छी लगती है तो वो कहानी चल पड़ती है. वन शुड वरी अबाउट नॉट द ब्रेक बट अबाउट हैविंग अ किक एस स्टोरी और अ किक एस स्क्रिप्ट. रेस्ट विल फॉलो आई थिंक. Right. Okay. All right. Next question is uh, is it critical to be Bombay based to be able to etch a career as a writer?
3 years I was not in Bombay. I mean, मेरा शूट शुरू होने के पहले I had shifted to Delhi because my wife had got transferred. I just shifted back to Bombay a month back. So पिछले 3 साल में जब मेरे 6-7 प्रोजेक्ट्स शूट्स के नज़दीक थे और बीच में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स और लिखी, I was not Bombay based. I was traveling to Bombay every month for 3-4 days. Okay. इन 3-4 दिनों में मैं आता था, नरेशंस देता था, मीटिंग्स करता था, फीडबैक्स लेता था और वापस चला जाता था। तो हफ्ते में 4-5 दिन बॉम्बे रहता था, बाकी टाइम में दिल्ली रहता था। तो इट इज़ नॉट एट ऑल a requirement that you have to be Bombay based, but it is good that you are in Bombay. तो नेटवर्क कर लेते हैं, लोगों को मिल पाते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है ऑब्वियसली। Right. Next question is बट for अगर us. कोई ये सोच रहा है कि उसे अपना सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे आना है तो वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके फाइनेंसेस पे बहुत Pressure पड़ेगा. हिट लेता है। बॉम्बे इज द कॉस्टलीस्ट सिटी इन द कंट्री। Okay. Next question is for a screenplay writer that too for a Hindi film industry, is it important to think in Hindi? Because आजकल many young writers grow up with more focus on English in schools and educational institutes. नो, आई डोंट थिंक दैट लैंग्वेज इज एनी बैरियर, बिकॉज बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं वो भी इंग्लिश में ही लिखते हैं। इफ यू डाउनलोड इफ यू स्टार्ट डाउनलोडिंग द स्क्रिप्ट्स ना जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, जैसे फिल्म कंपेनियन पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, आप डाउनलोड करोगे आप देखोगे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप स्त्री की स्क्रिप्ट डाउनलोड करोगे, राजन डी के हमेशा इंग्लिश में ही लिखते आए हैं, वो बाद में हिंदी डायलॉग्स कर लेते हैं। सो इट्स ओके। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, नेवर बीन इनटू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियंस हैं, तो हिंदी इज नॉट अ लिमिटेशन। अ Okay. गुड स्टोरी इज अ रिक्वायरमेंट, अ गुड आइडिया इज अ रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज Okay. इज नॉट। All right. Next question is, have you ever written a novel and a screenplay simultaneously? And if yes, so firstly, have you? Papa Man, I have अच्छा. simultaneously written a book and a film. बस Okay. फिल्म बन नहीं रही थी। I was very frustrated. मैंने प्रोड्यूसर्स के हाथ पैर पकड़े, please give me my IP back. I want it out, otherwise I will be mad. So I finished the book. पहले किताब लिख रहा था, फिर छोड़ दिया था, फिर स्क्रीन प्ले करने लगा, फिर वापस किताब पर आया, किताब बाहर आई, वो थोड़ा सा सुकून मिला कि लोग कम से कम पढ़ तो लेंगे, एंड देन स्क्रीन प्ले अभी चल ही रहा है उसका। Okay. Next question was, is there any good screenplay writing app that you recommend? ऐप एज इन टूल है, फाइनल ड्राफ्ट पे लोग लिखते हैं। हाँ, मैंने भी नाम सुना है। फाइनल ड्राफ्ट इज नॉट फ्री। फ्री के बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे। राइटर डू इट है, वो फ्री है। और भी बहुत सारे हैं, मतलब आप गूगल करेंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ। तो उसमें आपको जो भी फ्री मिल जाए आप लिखना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज फाइनल ड्राफ्ट इज कॉस्टली। आई थिंक उसका कुछ 14-15 हज़ार का लाइसेंस है। अच्छा. It doesn't matter, find any good screenwriting. Right. The next question is, what food do you give to the writer in you? पहले बोल सकता था कि अच्छी किताबें और अच्छी फिल्में, अब तो वो भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि काम बहुत हो जाता है। तो अपनी ही स्क्रिप्ट्स के साथ सर फोड़ना पड़ता है। बट हाँ, आई थिंक अच्छी किताबें, अच्छी फिल्में, अच्छे लोग, वही है। Acha. Next question was, how do you overcome self-doubt? ये एक्चुअली अभी तक ओवरकम हुआ नहीं है, तो Okay. इसका अगर आप ऐसे जवाब बोलेंगे तो पता हमारा नहीं क्या है। होगा? नहीं, एज ए राइटर यू आर बाउंड टू हैव दैट। आपको आई स्टिल स्क्रॉल द रिव्यूज ऑफ यूपी 65। अगर 900 लोगों ने अच्छा लिखा है और 10 ने बुरा लिखा है, आई स्टिल फिल्टर एंड सी किसने किसने 1 स्टार दिया है, क्या बोला है। वो तो आपके साथ रहता ही एज ए राइटर। हम लोग अपनी फैंटेसी, अपने इमेजिनेशन में ही जीते हैं ना, तो हम अपने डाउट्स को भी एग्जैजरेट कर लेते हैं अपने दिमाग में, अपनी अच्छाइयों को भी एग्जैजरेट कर लेते हैं दिमाग में। सो वी आर बाउंड टू हैव इट। वो रहेगा ही रहेगा। मेरी जो फिल्में अभी तक नहीं बन पा रही हैं या जो स्क्रिप्ट्स अभी नहीं वर्क कर पा रही हैं, पहला ख्याल दिमाग में यही आता है कि शायद स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है इसलिए नहीं बन पा रही है। आई नैरेट टू एक्टर्स। एक फिल्म की कास्टिंग करना इतना मुश्किल है कि
नॉट बिकॉज द स्क्रिप्ट इज बैड, बट आप शाहरुख खान को पापा मैन सुनाने जाओगे या कुछ और सुनाने जाओगे, ऑब्वियसली ही विल से नो ना, बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग. सो आई नरेटेड टू द लॉट ऑफ एक्टर्स एंड दे से नो टू द स्क्रिप्ट्स बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है. तो सेल्फ डाउट तो रहेगा ही रहेगा, बट यू हैव टू जस्ट राइट. आई थिंक आप अपने जॉय के लिए लिख रहे हैं, सो यू इट शुडंट बॉदर यू, क्योंकि ये नौकरी तो है नहीं आपको. आप अपनी खुशी के लिए उस लिए लिख रहे हैं, तो अच्छा बुरा जैसा भी होगा, यू शुड कीप ऑन राइटिंग. आई थिंक एंड यू विल लर्न इन दिस प्रोसेस. Okay, cool. आपने बहुत खराब पीपीटीज बनाई होंगी, आपने ऑफिस में बहुत सारे खराब खराब दिन बिताए होंगे, तो उसके लिए तो आप नहीं सोचते ना, तो फिर कहानियों के लिए क्यों सोचते? Okay. How does that was an interesting one. In fact, one of the next questions is how does your corporate experience feed your writing or does it not? It does. It does a lot. I mean, I would say IT जाना उसने भी फीड किया, IIM जाना उसने भी फीड किया, कॉर्पोरेट ने भी फीड किया, बिकॉज आपको वो बहुत सारी दुनिया दिखाता है ना, आप बहुत तरीके के लोगों से मिलते हो, आप वो आपके अंदर जो पेन है बहुत ज्यादा डेस्परेशन भर देता है. बिकॉज मैं इतना ज्यादा इसीलिए लिख रहा था क्योंकि वो उससे उस पेन से बहुत डेस्परेशन आ रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना है, नहीं निकले तो पागल हो जाएंगे शायद. तो उस डेस्परेशन से भी इट डज फीड यू अ लॉट. एंड Okay. ऑब्वियसली व्हेन यू लर्न अ लॉट, उस सबसे भी आपको बहुत सारी चीजें तो मिलती हैं. इट हैड मेड मी स्ट्रक्चर्ड आल्सो, Right. because otherwise I wouldn't be able to finish like 5 scripts a year, 6 scripts a year. Because वो जो मुझे लगता है जो IIM वाला डिसिप्लिन आया हुआ है, अगर मुझे 10 की बजाय 10:30 हो जाता है काम शुरू करने में, आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि आज मेहनत नहीं कर रहा हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ बैठ के. तो Okay, cool. इसमें next question है, how do you choose the first readers to get feedback from on your first draft? my first readers are always my producers. अच्छा. I choose to work with good producers. लेकिन किताब Because के लिए अगर अगर वो सोचें तो किताब के लिए भी तो सोचिए, फॉर ऑल माय बुक्स आई हैव हैड अ फ्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, जो मेरे आईटी बीएचयू के जितने दोस्त थे जिनके साथ थिएटर किया, उनमें से कुछ लोग ने खुद भी किताबें लिखी हुई हैं. तो वो कुछ 6-7 लोगों का ग्रुप रहा है, उसमें से कुछ नॉन रीडर्स भी रहे हुए हैं. यू शुड ऑल्सो हैव पीपल जिन्हें किताबों से नफरत है, मतलब जो किताब पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज उनसे टेस्ट हो जाता है एक कि एक ऐसे इंसान को अगर आपकी किताब ने बांध दिया. फॉर एग्जाम्पल UP65 मैंने अगर एक ऑटो वाले को भी पढ़ाई, तो भी उसने मुझे बोली कि यार ये तो एक सेटिंग में पड़ गया. सो दिस ऑलवेज इज अ लिटमस टेस्ट फॉर योर बुक. यू शुड गिव इट टू नॉन रीडर्स कि जो उन्हें किताबें पढ़ते ही उबासी आने लगती है, अगर आप उन्हें बांध पा रहे हैं, उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही है, सो हैव अ मिक्स ऑफ लाइक 10-15 पीपल एंड हियर देम आउट. वो कितना Okay. भी अच्छा या कितना भी बुरा फीडबैक दे रहे हैं, जस्ट हियर देम आउट एंड सी आपको उनमें से क्या फीडबैक लेना है, क्या फीडबैक नहीं लेना. Then Ritu has a question saying, how do you detach from the first draft? Do you detach from it actually? I could never detach. Every day when I go to sleep, the films that have not been made, दिमाग में वही आता है जो बन गई हैं. उनकी खुशी से ज्यादा जो नहीं बनी उनका दुख घूम घूम कर आता है. Okay. All right. जब भी मैं अपनी फिल्म एडिट पे देखता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये सीन क्यों काट दिया, या जब डायरेक्टर मेरे इंटरप्रिटेशन को लेके सीन कुछ और कर लेता है तो बहुत गुस्सा आता है. तो डिटैचमेंट तो कभी नहीं हो पाता. Okay. Next is from Monish. He's saying you'll be coming to the retreat. So Nikhil is going to be coming to the Himalayan Writing Retreat for a course on December 14th to 17th. The question is, what do you plan to do there? What will you be teaching? So I would be covering both. पहली किताब और पहला स्क्रीन प्ले, दोनों पे सेशन करूंगा. Okay. आई मीन यू कैन ऑल्सो टेल मी कि एक बार में किताब कवर करनी है या मूवी खत का कवर करनी है, बेसिस किस तरीके के लोग आ रहे हैं. आई एम फ्लेक्सिबल, बट 70% कंटेंट दोनों का सेम ही होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर इज द सेम. आई वांट टू Right. फोकस मोर ऑन द स्टोरी. आपके पास एक बेसिक वाहियात आइडिया है, आपको लगता है उस पर कुछ फिल्म या कहानी नहीं बन सकती. I would want to give it that confidence to you from 14th to 17 कि एक वाहियात आइडिया पे भी हम एक अच्छी कहानी कैसे लिख सकें, और आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लिख सकते हैं. Okay. हाँ, because that's true. आजकल वो आज genre वाला उतना नहीं रह गया जितना पहले होता था. या बिल्कुल.
Okay. Chetan ji, I think you missed a couple of questions. I Okay. also asked a question. अच्छा वो बीच For में उनका Mohsin था ji. क्या? ठीक है, I'll come back to ये वाला collapse और Eh, why don't you just go ahead and say your question, Mayank? I just wanted to ask, how should you approach long format stories? Like if you have a lot of characters and they're going in different timelines. तो क्योंकि आइडियाज आपको बहुत रैंडमली आते हैं और एकदम ऐसा नहीं कि आपने शुरू से स्टार्ट किया, आप लिख रहे हो तो आपको एक के बाद एक आइडिया आएगा। तो सपोजिटली अगर आपकी एक सीरीज है पूरी, तो आप उसमें आप जनरली आप कैसे अप्रोच करते हो? क्योंकि समटाइम्स आई गेट मिक्स्ड अप विद टाइमलाइन, समटाइम्स आई गेट मिक्स्ड अप विद द आर्क ऑफ द कैरेक्टर्स। तो थोड़ा कहीं कहीं जो है ना वो प्रॉब्लम कर देता है। So do you have any kind of strategy to pull that out? पहला लॉन्ग के लिए तो ऑब्वियसली पहले शॉर्ट फॉर्मेट को बांधना जरूरी होता है, तो इसके लिए भी मेरी पहली दोनों किताबें वर शॉर्ट स्टोरीज। नॉवेल मेरी जो तीसरी किताब थी वो जाके नॉवेल बनी। तो मुझे लगता है पहले तो आपको शॉर्ट फॉर्मेट जब पूरा बंध जाता है तो अ, पहला बैरियर वो है। उसके बाद आप मान लीजिए पहले ही अटेम्प्ट लॉन्ग फॉर्मेट में कर रहे हैं तो अगेन ये इटरेटिव है, मतलब वो आपको पहले, मैं यूजुअली पहले कहानी क्रैक करता हूँ। जब मुझे पूरी कहानी दिख जाती है फिर उसी कहानी को मैं अलग अलग कैरेक्टर के पासेस करने लगता हूँ कि अगर इस कहानी में सिर्फ ये प्रोटैगनिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल राजू हिरानी ऑल्सो डज द सेम। उनकी कोई भी फिल्म होती है, जैसे थ्री इडियट्स है, तो थ्री इडियट्स एक बारी आमिर खान के पीओवी से लिखी जाएगी, फिर देन ही विल गिव इट टू हिज राइटर कि अभी यही पूरी फिल्म अगर माधवन इसका मेन प्रोटैगनिस्ट होता तो कैसे लिखी जाती। सो उसके कई सारे ड्राफ्ट्स होंगे, उससे आपको वो किरदार ज़्यादा दिखने लगते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के बारे में ही सोच रहे होते हो और बाकी कैरेक्टर खाली सजावट के तरीके दिख रहे हम्म। होते हैं। उसी बीच आपको आर्क्स भी दिखने लगती हैं, वो आपको ज़्यादा क्लियर होने लगते हैं, तो कई बार उनका उस कहानी में रोल थोड़ा और निखर के आ जाता है। बाकी टाइमलाइंस एंड ऑल वो धीरे धीरे इटरेटिव ही है। यू शुडंट वरी अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इट इनिशियली। एक बार पहले पूरी कहानी दिख जाएगी, फिर आप धीरे धीरे पासेस करते रहिए। कैरेक्टर्स के पास अलग कर लीजिए, आर्क्स के पास अलग कर लीजिए, फिर एक फाइनल पास आप टाइमलाइंस का कर लीजिए, तो वो दैट आई थिंक हो जाएगा। Yeah, I'm doing the same thing from a couple of months, क्योंकि वो पहले ऐसे ही होने लग गया था, बहुत कंफ्यूजन होने लग गया था मुझे मेरी स्टोरी को लेके, या कहाँ या से या, क्या या। हो रहा है, कहाँ जा रहा है। हम्म, तो आई ऑल्सो डिस्कस दिस विद दिव्य सर, दिव्य प्रकाश दुबे। हम्म, तो उन्होंने भी यही बताया था, उन्होंने एक चार्ट का बताया था कि आप एक शीट लीजिए बड़ी सी, उस पर सब हम्म, कैरेक्टर्स लिख दीजिए, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। यू कैन बिल्कुल। यूज दैट टेबल टू आप या समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। ऊपर जाने के बाद तो प्रॉब्लम होती है, सो यूजुअली जब लिख जाता है तो कई बार खाली मैं सारे सीन्स के वन लाइनर कर लेता हूँ, या हम्म वो फिर आपको फिर पोस्टिट्स पे लगा के आप सामने देख लीजिए, तो आपको एक बार में सारा चीज पूरा मैप दिख जाता है। आप पूरा अपनी 500 पेज की कहानी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ गलती हुई। आप खाली हम्म वन लाइनर्स देखेंगे सीन्स के, या फिर हर चैप्टर में मेजर बीट्स क्या हैं, तो हम्म। आपको क्लियरली दिख जाता है कि वो तो कितना yeah, सही बैठा है या so नहीं। beat sheets is one of this concept which is a very screenplay writing concept. So I think या जब निखिल वहाँ आएंगे तो we will get deeper into beat sheets also. Okay, next couple of questions, then we should close. Um, is the screenwriter income steady or erratic? थोड़ा obvious question है, but still. ऐसे इनिशियली स्ट्रगल रहता है ऑब्वियसली, बट अभी फिलहाल एक अच्छा समय है बिकॉज ऑफ ओटीटी चैनल्स एंड नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार्स एंड ऑल दैट। थैंकफुली इंडियन कंपनीज नहीं है तो इन लोगों ने ये इंश्योर किया हुआ है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना काम नहीं शुरू हो। बिकॉज अगर एक शो, आई मीन यू विल फाइंड इट लाइक रियली रियली हैप्पी, यू विल इट विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। मतलब एक शो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक उनकी ऑडिट की टीम ये इंश्योर नहीं कर लेती कि हर एक इंसान प्रॉपर क्रेडिट मिला हुआ है, उनको उसके लिए पैसा मिल चुका है, उनके बिल्स हर एक चीज़ वो लोग रखते हैं, उसे ऑडिट करते हैं, उसके बाद ही वो शो बाहर आता है। सो थैंक्स टू अमेरिकन, थैंक्स टू ब्रिटिश, कि उन्होंने उनकी जो कंपनीज है उन्होंने ये स्ट्रक्चर इंडिया में ला के बिठा दिया है। अदरवाइज पहले तो चीज़ आ गई, क्रेडिट मिला नहीं मिला, तो एटलीस्ट ओटीटी और इन लोगों के आने के बाद ये प्रैक्टिस इंडस्ट्री ने बना ली। Hmm. Okay.
The next question is from sending synopsis to shooting every step takes too much time. So how to be calm and composed through that process? तो इनसे बात से तो नहीं लग रहा कि ये काम कंपोज रहते हैं, लेकिन तब भी बताइए. नहीं रह पाएंगे, बट क्या होता है कि कई बार आपको अगर उस स्टोरी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ना, तो फिर आप करते जाएंगे, मतलब यू विल बियर ऑल द पेन. मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टोरी इज लाइक अ किड ओनली ना. जब तक नहीं बच्चा किया नहीं किया तब डरते रहते हैं, बट एक बार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे कई रातों तक नींद नहीं आ रही है, तो आप ऐसा तो नहीं उसे डिसोन कर देते ना. फॉर Right. एग्जाम्पल माई डॉटर हैज बीन अनवेल सिंस पास्ट अ मंथ, आई नॉट बीन एबल टू स्लीप, तो बट ठीक है ना, आप जगते हैं ना, फिर वो सारी कई रात तक आप डिसोन तो नहीं कर देते. तो वैसे ही अगर आपको उस कहानी से बहुत ज्यादा लगाव है, जुड़ाव है, यू विल गेट ओवर इट. नहीं है उससे लगाव जुड़ाव, फिर तो आप यू नो नहीं कर पाएंगे. तो वही कहानियां लिखिए जो सच में आपको लग रहा है कि ये कहानी कहनी ही है, मुझे ये कहानी मैं नहीं कहूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. Right. Okay. चलिए, lovely. It's been fabulous talking to you, Nikhil.